Okay, so Subhash, let's proceed ahead with your HR for post of material manager in NMDC. Let's start with your brief introduction, Subhash. Good morning, sir. My name is Subhash Ansda. I am from Giridih, Jharkhand. Regarding my academics, I have done my matriculation from Carmel School, Giridih, in which I had secured 89.6%. After which I did my intermediate from Sri Ayappa Public School, in which I had secured 84.6%. After which I did my BTech from BIT Sindri Dhanbad, in which I had secured 8.59 CGPA. After which I was preparing for GATE, and through GATE marks I got admission into IIT Kharagpur this year in the MTech program of Structural Engineering. Regarding my achievements, sir, I have won a gold medal and bronze medal in the event of triple jump organized by ICSC All India Athletics Committee, and I've also been an event manager during my BTech days in Sports Club BIT Sindri. And regarding my hobbies, I like to watch, play, and analyze cricket a lot. Thank you, sir. Hmm. So, आप when did you graduate, Subhash? What did you say? Sir, 2022 और उसके बाद आपने आईटी खड़गपुर ज्वाइन कर लिया. is sir, this year. So, what are you learning in Kharagpur? Sir, regarding the structural engineering, just the basic only. They are just making us revise those things. So, एमटेक से क्या करना चाहते हैं आप? सर एमटेक में सर कुछ एकेडमिक्स वगैरह स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्स के बारे में और थोड़ा पढ़ना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मैंने ज्वाइन किया था। हम्म, अच्छा, सो आप सुभाष ये बताइए, आप ये मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में क्या जानते हैं? आपने पढ़ा है कभी? सर एकेडमिकली तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अपने अपने स्तर से मैंने कुछ इसके बारे में जाना, कुछ कुछ पढ़ा है कि मटेरियल मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है। इट हैज बेसिकली क्यों टू जॉब डू ज्वाइन हैज क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं एज मटेरियल मैनेजर? आपको सॉरी इसमें सर। क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है अपने लिए? सर Uh, first of all, why I would like to join NMDC is that it would be a matter of great pride for me to join in such a prestigious organization like NMDC, where I believe that not only the company takes not only takes a great pride in doing what all the metallic and mining industry work that it performs, but it also a company which takes a great pride in doing in becoming environment friendly organization, as well as takes a great pride in sustainable development and social development. So I would like to join in a organization like NMDC, where I would be able to contribute to such a great efforts. And also I would what I feel that I would learn a lot of skills which will not only help me to achieve greater heights, but also but I believe that I would be able to contribute to already progress that NMDC is being performing, and to the progress of my country. And the second part of the question, that why I want to join as a material management post, is that although I do understand that I have a civil engineering background, but the prospect of me joining NMDC as a material management post excites me a lot, because I got an exposure when while I was studying about civil engineering during my BTech days, uh, where I understood how much critical factor an effective material management plays. So when I got an opportunity to actually apply for a material management post here, so I preferred to go for that. ओके. सो सुभाष, आपने कभी भी मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर कोई कोर्स पढ़ा है क्या? सर ऐसे ऑफिशियली तो कुछ कोर्स पढ़ा नहीं है, लेकिन अपने से ही जब मुझे कुछ पता चला मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस टाइम मैंने कुछ कुछ पढ़ा था मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, इंडस्ट्री में उसका अच्छा, आप क्या प्रोक्योरमेंट के इम्पोर्टेंस बारे में कुछ रहता है। जानते हैं? व्हाट इज प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट में बेसिकली हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग शेड्यूलिंग करते हैं, जो कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है,
कितने क्वालिटी कितने क्वांटिटी में परचेज करना है, ताकि जो एफिशिएंट जो प्रोडक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हो सके। बेसिकली तो उसी के लिए वो प्रोक्योरमेंट करते हैं। आपने जेम पोर्टल के बारे में सुना है? गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। यस सर, गवर्नमेंट ये प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जो कि गवर्नमेंट भी आजकल अडॉप्ट कर रही है फॉर एफिशिएंट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए। मटेरियल से क्या समझते हैं आप? सर मटेरियल से ये समझते हैं सर कि जिससे एक हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में मटेरियल हम लोग उसको कंसीडर करेंगे जिसका कि हम लोग को इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग का यूजफुल रहे। उस चीज को हम्म, फॉर एग्जांपल मटेरियल बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर उसका यूज अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अगर नहीं है तो हम लोग ऐसे इंजीनियर उसको मटेरियल नहीं कंसीडर करते हैं। अगर आप कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए मटेरियल क्या है? सर एज ए सिविल इंजीनियर तो मेरे लिए जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, कंक्रीट हो गए, टिम्बर हो गया, ब्रिक्स हो गए, मेजरली जो एज ए सिविल इंजीनियर विच वुड हेल्प मी टू परफॉर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वो मेरे लिए मटेरियल है। ओके, कोई एग्जांपल दीजिए। सर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक कोई बिल्डिंग बनाना है या कोई भी प्रोजेक्ट जो मुझे दिया गया है, हम्म, तो वो उसको फुलफिल करने के लिए जो कि जो कि स्ट्रक्चरली हम दैट वुड मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल, उसके लिए मुझे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे ब्रिक्स चाहिए होगा, कंक्रीट चाहिए होगा, कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट चाहिए होगा, एग्रीगेट चाहिए होगा, सैंड चाहिए होगा, वो भी डिजायर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी में चाहिए होगा। अच्छा, ये और साथ ही बताइए, साथ ये भी मटेरियल मैनेजर की ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? सर मटेरियल मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि सबसे पहले तो जो भी एक्टिविटी का फ्लो हो रहा है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हम्म, सारे चीजों को ध्यान में रखना है। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको देखना है कि बढ़िया से हो रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि जब हम लोग कोई सप्लाई परचेज कर रहे हैं, वो राइट सोर्स से होना चाहिए, राइट कॉस्ट में होना चाहिए, राइट प्लेस पे हम लोग का आना चाहिए, राइट टाइम पे भी आना चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस। और राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी में आना चाहिए। और ये भी मटेरियल मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि देयर इज कंटिन्यूटी इन सप्लाई, अदरवाइज देयर विल ब्रेक डाउन और हॉल्ट इन द प्रोडक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी का भी कंटिन्यूटी बना रहे, क्योंकि द because at last quality of end products depends upon the quality of raw materials that is coming into an organization. उसके व्हाट इज अलावा कि इन्वेंट्री? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेंट्री? सर इन्वेंट्री इज बेसिकली स्टॉक जो हम लोग रख रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल सप्लाईज जिसका हमें डिमांड है, तो उसका जो स्टॉक हम लोग रख रहे हैं स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में, उससे आई थिंक दैट इज ओनली द इन्वेंट्री। अच्छा, डू यू नो वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एनएमडीसी? हैदराबाद। एंड हु इज द सीईओ ऑफ एनएमडीसी? सर श्री अमिताभ मुखर्जी। ओके, ओके सुभाष, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। ओके एक तो आपका इंट्रोडक्शन वाज वेरी वेरी लॉन्ग, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल इन इंट्रोडक्शन। किस स्कूल से किया, कितना सीजीपीए था, कितना परसेंटेज था, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको स्टार्ट ओके। करना चाहिए कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये मैं एरिया से हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरी इनिशियल स्कूलिंग वहीं पे हुई है, उसके मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से किया। ग्रेजुएशन के बाद सर मैं अभी प्रेजेंटली मास्टर्स कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर में इन स्ट्रक्चर्स। वेरी ब्रीफ। यस सर। उसके बाद ये ओके। सारी चीजें खुद पूछेगा वो आपसे। जो बायोडाटा में जो आपके परसेंटेज मार्क्स हैं वो तो बायोडाटा में लिखे होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हॉबीज, इंटरेस्ट वगैरह जो आपने बताया, वो वैसे ही वो पूछ लेगा आपसे। उसको भी तो कुछ क्वेश्चन चाहिए ना पूछने को। तो अच्छा। आप अपने इंट्रोडक्शन को स्ट्रिक्टली उस स्क्रिप्ट पे रखें जो बताया जाता है। और शुभा मैम के साथ आप एचआर करेंगे, वो आपको बताएंगे भी कि इंट्रोडक्शन कैसे करें। उनको बोलना कि मेरे इंट्रोडक्शन में मैम बहुत चीजें बताई थी, विजेंद्र सर ने तो बोला ये नहीं करना है, तो आप एग्जैक्टली बताइए क्या होता है इंट्रोडक्शन में, क्या बताया। मैंने भी आपको वही चीज बताई
वैसे इंट्रोडक्शन होगा आपका, और प्रैक्टिस करें उनके साथ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। यस। एनएमडीसी थॉरोली आप एक बार देख लें उनका वेबसाइट, एनएमडीसी के बारे में पढ़ लें। दो आपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। लेकिन एनएमडीसी क्या है और एज अ सिविल इंजीनियर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ये तो मिनरल कंपनी है। मटेरियल मैनेजर के क्या रोल्स ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, गूगल आउट करो, इन्वेस्टोपीडिया, यस। विकिपीडिया, इन पे मिल जाएगा आपको। व्हाट इज यस। मटेरियल मैनेजर एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोक्योरमेंट यस। क्या होता है, ई प्रोक्योरमेंट क्या है, जेम पोर्टल क्या है, कब बना था जेम पोर्टल? अभी 2 लाख करोड़ रुपीज इसका जो है टर्नओवर रहा है पिछले कुछ साल में। एक साल में यस। 2 लाख करोड़ तक हमने प्रोक्योरमेंट किया है। तो कैसे प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, एज अ सिविल यस। इंजीनियर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? वाई एनएमडीसी, आपने बहुत आंसर रटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि रोट मेमोराइज करके आए हो, लंबा आंसर, इतना लंबा नहीं होता। वाई एनएमडीसी सर, इट्स अ ग्रेट पब्लिक सेक्टर एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्यों पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना है, ये रीजन है। और आई एम श्योर सर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें एज अ सिविल इंजीनियर क्या प्रोक्योर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल एट पर्टिकुलर कॉस्ट एंड मेंटेनिंग द रिलेशन विद द सप्लायर, ये कुछ चीजें होती हैं। सप्लाई। हाँ, फिर एमटेक कर रहे हैं आप तो क्या बेनिफिट होगा आपके एमटेक का इस जॉब के लिए? ये क्वेश्चंस, ये सारा जो मैंने फीडबैक दिया है इसको ध्यान में रखते हुए दोबारा तैयार करो सुभाष। एचआर लगाओ मेरे साथ, मैम यस। के साथ लगाओ, नेहा मैम के साथ, शुभ्रा मैम के साथ, मेरे साथ, कविता मैम के साथ, यस। चार एक लोग एचआर वाले हैं, फिर सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके साथ करो, राइट। सर ये चीज़ पूछना था कि सर वेटेज अगर देखा जाए तो टेक्निकल की तरफ कितने जाएँगे और ये मटेरियल मैनेजमेंट तरफ कितने जाएँगे? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर एक्चुअली उनकी उसके ऊपर होता है, अगर वो मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ चले गए चले गए चले गए तो पूरा उसी में खींचते रहेंगे। इसलिए आप दोनों की अच्छा। तैयारी करो, दैट इज माई एडवाइस टू यू। ऑन एन एवरेज क्या ओके। होता है, 50% एचआर, 50% वो टेक्निकल पूछेगा आपसे। लेकिन अच्छा। एज आई टोल्ड यू, इट कैन बी 90% एचआर, 90% टेक्निकल, हाँ। डिपेंडिंग अपॉन दैट डे आपके साथ। यस। एक ही पैनल में दो यस। बच्चों का अलग अलग इंटरव्यू चलता है, एक बोलता मेरे से एचआर का नहीं पूछा, एक बोलता मेरे से एचआर का ही पूछा। तो हुँ। आप तैयारी करके जाइए बस, दैट इज द सेफ रूट फॉर अस, यस। राइट। सुभाष, करो इसको जो मैंने आपको फीडबैक दिया, वर्क ऑन दिस।